हाँ, शुरू करते हैं। जी महाराज। हाँ महाराज। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो वेलकम सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महाराज जी। नमस्कार। सबसे पहले है इसकी समरी करेंगे अशोक रहेजा जी। प्रणाम स्वामी जी। आप शुरू कीजिए जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द डिवोटीज। Under spiritual teaching series, so far we have learnt up to part 3 under this series. Now, as during last Sunday's meeting, while giving summary of part 3, Swamiji had told us that these teachings are culled out from reminiscences of Swami Yatishwaranand Maharaj by her disciple Pravrajika Shraddha Pranaji, a serious sannyasini of Ramakrishna Sharda Math, Kolkata. So now I am presenting summary of this part 4. First of all, Swamiji tells us that there should be a harmony in our personality. What is personality? The combination of body, mind, senses and ego form our personality. तो इन चारों कंपोनेंट्स का सामंजस्य होना चाहिए हमारी लाइफ में, तभी हार्मनी आएगी हमारी पर्सनैलिटी में। फर्दर स्वामी जी टेल्स अस इन डिटेल अबाउट ऑल दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट इज बॉडी। स्वामी जी टेल्स अस दैट आवर बॉडी इज नाइदर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन नॉर ए मास ऑफ फिल्थ। ये जो हमारा शरीर है ये इंद्रिय संतुष्टियों के लिए नहीं है और ना ही ये एक कूड़े का ढेर है जिससे हम घृणा करें या इसको नेग्लेक्ट करें। रादर दिस बॉडी इज टेम्पल ऑफ डिवाइन स्पिरिट। ये तो हमारा शुद्ध आत्मा का एक मंदिर है एंड इट शुड बी नरिश्ड विथ प्योर फूड विच ब्रिंग्स एनर्जी, हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड cheerfulness within us so that one can do spiritual practice without any disturbance in his or her mind. Then Swamiji tells body must be kept in good state of health. That if a person is having headache or stomach is not well or for that matter any illness, then how one can meditate. Further Swamiji tells that a person told Swamiji that he want to forget the body and meditate, and then Swamiji answered, even if you forget the body, the mind will not forget you. So keeping the body fit and efficient is essential in the path of spirituality. Deha Devalya. Body is a temple of God in which Atman resides. So we must always remember this. Secondly, Swamiji told about mind. Second component of our personality is mind. The mind of a person is having 3 faculties: thinking, feeling, and willing. That is reasoning, emotions, or actions. And it so happens that these 3 faculties many times will work in different directions. हमारी reasoning कहीं और होगी, emotions कहीं और होंगे और action किसी दूसरी तरफ होगा. At one point of time, we may be thinking one thing, and our feelings may be in different direction, and our action may be yet in some other direction, in some other matter. So, for spiritual progress, all these 3 faculties need to work in harmony in one direction. तीनों faculties को एक ही दिशा में कार्य करना होगा, तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं. थर्ड है senses. इंद्रियों के बारे में स्वामी जी ने बताया कि our senses are always eager to run after the sense. बोल रहा हूँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ जी। आप कमेंट्री कर रहे हैं, आपको समरी करना है। जी जी।
हाँ, जरा सावधान रहिए, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जी जी। Swamiji tells us that our senses are always eager to run after the objects. We should have ability to discriminate what is good and what is bad for us. And knowing this, we should control the senses. We should not be impulsive. Impulsive नहीं होना चाहिए. We should try to expand our consciousness, and then we will be able to break away from the hold of impulses. Last is ego. Then Swamiji tells, when the ego takes over us, we start thinking too much of ourselves and become selfish. That only through japa and meditation, through prayer and worship, we can expand our consciousness and then let this ripe ego direct and guide the mind. The senses and the body, Swamiji tells us about tremendous power of mantra further, which can revive us physically as well as mentally and produce harmony in the body and the mind, and also quickens the art of right understanding. Then further elaborating about the mind, Swamiji tells about 3 types of reasoning. One is childlike reasoning, second is logical reasoning, and the third is materialistic reasoning. Swamiji tells that yes, there should be reasoning and we should intellectually understand the spiritual path. But then too much of reasoning is also not good. Because of this ignorance, we are not able to see our true self. Yes, by leading a spiritual life, we realize what actually we are. Next, Swamiji has explained about the fear by way of story about the king in whose kingdom many people were dying. And when the king asked the Yama said, I have to take only fixed numbers, but the people are dying out of fear. Next is mental blankness, shunyata. In the next part, Swamiji explained about mental blankness, lack of conscious awareness. There are 3 types of mental blankness: tamasic, rajasic, and sattvic. Tamasic, when there is no activity. One experience is just before the sleep. Second is rajasic. This blankness has been explained by an example of 2 monkeys jumping aimlessly from one branch to another and then get tired and remain silent for some time to start the mischief again. Third is sattvic blankness, which is in spiritual blankness where aspirant feels pure and at high level. Then further Swamiji tells, I do not understand why people feel mental blankness. This shows that spiritual ideal has yet not been fixed in our mind. Otherwise, the blank moments should be filled by Lord's names and thoughts. Swamiji tells us to be careful and to take necessary food for body as well as for the mind. Empty stomach gives stomachache and empty head gives headache. There is a beautiful example of a small boy who during the whole day was playing and did not take any food. And in the evening, he got stomach ache, and doctor told that it is because his stomach was empty and in the whole day, and he became all right after taking food. In the evening, the child's father got headache. The son said the father got headache because his head is empty. So if he puts something in his head, he will be all right. By way of this example, Swamiji is trying to explain to us that cause of restlessness is that soul is not getting enough food. So we must have habit of studying something every day, which will keep us in spiritual environment. When the mind is elevated and expanded, all the petty and dirty ideas are automatically swept away, and it will be easy to control the lower thoughts, and divine grace will automatically inflow in us. Swamiji further tells how in Holland one person used to attend lectures, but always he used to remain absorbed in himself. And on asking him about this state of affair, he explained his pain, and after Swamiji gave him some spiritual instructions, and that was a turning point in his life, and he turned to spirituality. Next, Swamiji tells about spiritual ideal. Our ideal is so high that more we advance, more we find there's still so much to be covered to reach our highest goal. But in this process, sometimes we feel dejected, but let this dejectedness, depressed mood
and encourage us to struggle harder to reach our goal of blissful state. But problem is we reject the infinite and remain busy with the finite, which gives us only momentary pleasure. Real Anand is attained only in realization of the infinite. But simply by wishing, we cannot achieve this ultimate state. We need to continue our practice of prayers and meditation. Next, Swami tells about divine love. By trying to see Ramakrishna in all men and Holy Mother in all women, the spiritual seekers can transmute all animal impulses and passions into divine love. Here, Swamiji tells about two things: dedication and selflessness. Dedication is an efficient means for purifying the personality and transmuting personal love into divine love. Further, Swamiji gives a story of 50-50, one rabbit, one horse. That means little dedication and full of selflessness. In spiritual life, we want to turn to the infinite spirit, which is all love him, worship him, pray him, and meditate on him. Have our hearts filled with a little of divine love, and then share this love with our fellow beings without any expectations from others. We must value a personality because of the principles and not for any selfish reasons. Dependence on outside worldly things is bondage, and dependence on undwelling Atman, the Atman, is freedom and source of joy. Further, Swami tells about japa and meditation. We need to improve our quality of japa and meditation and not quantity of japa and meditation. Swami tells about one dristant, Ramakrishna, a parrot, where एक पैरट रामा रामा बोलता था, लेकिन जब कैट ने पकड़ने आई तो उसकी स्थिति चेंज हो गई, ही स्टार्टेड क्राई. और एक दूसरा एग्जांपल दिया कि म्यूटनी के टाइम कुछ सिपाही ने एक साधु को शॉट किया था, लेकिन उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक शिवोहम बोलते रहे. तो ये मन की स्थिति जपा मेडिटेशन के कारण है. विदाउट हार्मोनी ऑफ बॉडी एंड माइंड, no proper japa and meditation can be done. We need to repeat the name of Lord with great devotion. Swamiji explained by example that even if we repeat the name 1,000 times, it will be of no good if there is no devotion. Whatever form one takes up for meditation, there should be clear conception of that deity, and ultimately it should take you from form to formlessness and speech to speechlessness. Then further, Swamiji tells about complete surrender, samarpan. Grow in vairagya, grow in wisdom, only then mother will accept you. If you try to handle any situation, it becomes narrow and may slip down. But if you leave it to Holy Mother, it expands and you find tremendous good results. Bow down to her will, you will feel better. One cannot have blueprint of life. जीवन में सुख दुख आता है. It is an unpredictable. There is always possibility of rise and fall. Ideal is work and worship, karam and upasana. Play the drama of life as well as you can. Drop your expectations. Asha hi param dukkham, nairashyam param sukham. Hope is a great test misery. Greatest happiness lies in giving up all the hopes. We must learn to depend on good, not God. Depend on God, not on human beings. Further, regarding ethical culture, Swamiji says, Brahmacharya, asanas and pranayam prepare body and mind for concentration. Since body and mind are the instruments for spiritual practice, we must keep the instruments in fit and perfect state. Thank you, sir. अच्छा, आज जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ईगो से एसोसिएटेड हैं, अहंकार. तो उसको लेने के पहले मैं सोचता हूं कि मैं एक अहंकार के संबंध में मैंने एक छोटी सी एक समरी बनाई है, आपको बता दूं. ठीक है? तो उसमें बोलते हैं ईगो है क्या?
अहंकार जिसे कहते हैं संस्कृत अपने उसमें पतंजलि योग सूत्र में उसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता की परिभाषा करते हुए कहते हैं ये पंच क्लेश में से है। क्लेश क्या है? जो क्लेश हमें कष्ट देवे, जो वैल्यूज, जो बातें हमें कष्ट देवे। और 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। एक एक का डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं, लेकिन अस्मिता क्या है? दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता अधिक, यानी आत्मा और बुद्धि जब दोनों एक हो जाते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते, तो ये हो गया अहंकार। और इसके फिर बहुत सारे इन्वोल्यूट होते हैं, इसके बाद एक एक होता है। यानी जब आत्मा बुद्धि के साथ एक हो जाता है तो क्या कहते हैं? मैं बुद्धिमान हूँ। उसके बाद में जब मन के साथ में एक हो गए तब हम कहेंगे मैं बड़ा चंचल हूँ, मैं चिंतित हूँ। अरे मन में चिंता हो रही है लेकिन मैं चिंतित हूँ। मैं क्या है? अहंकार। आत्मा को साथ मैंने यूनाइट कर दिया। तीसरा है मुझे भूख लगी है। मुझे क्या, मेरे पेट खाली है लेकिन भूख तो पेट में लगी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे भूख लगी है। फिर चौथा जैसे आपने कहा अब ये मुझे दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है। इसका और भी आगे चले जाइए तो एक पुत्र है, उसका पुत्र मर गया तो माँ चिल्लाते हुए कहती है हाय मैं मरी। अरे तेरा पुत्र मरा है लेकिन उसने आइडेंटिफाई कर लिया मैं मर गया। तो इस प्रकार से ये अहंकार जो है वो नीचे आते आते देह के साथ एकात्मता हो जाती है, मन के साथ एकात्मता हो जाती है, प्राण के साथ एकात्मता हो जाती है, और इसके सारे हमें कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में तो एक कहानी है पुरंजन की। अब यहाँ तो 5 चैप्टर में है वहां पे भागवत में, लेकिन उसकी कहानी ऐसी है कि एक राजा अपनी पत्नी से इतना आसक्त था कि निरंतर उसका चिंतन करता रहता था। पत्नी मर गई तो भी उसका चिंतन करता रहा, और बात चिंतन करते करते खुद पत्नी बन गया, खुद एक नारी बन गया राजा। यहाँ तक कहानी जाती है कि उस नारी को दूसरे राजा ने विवाह कर लिया। हमारी भी ये सिचुएशन है, हम आत्मा है लेकिन हमने देह के साथ में, प्राण के साथ में, मन के साथ में आइडेंटिफाई कर लिया है। यह आइडेंटिफिकेशन ही कहा जाता है अस्मिता या ईगो। अब इसको दूर करने के क्या उपाय? जनरल पहले आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दूसरे ढंग से कहेंगे, अभी हम उसको फिलोसॉफिकली अहंकार को समझ लीजिए। अहंकार को दूर करने का क्या है? कई उपाय हैं। ज्ञान योग का, ज्ञान योग में क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अहम देह नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ब्रह्म हूं। तो ये ज्ञान मार्ग हो। दास बना लो, प्रभु का मैं दास हूं। ठाकुर बोलते हैं ये अहम तो रहेगा, अहम को तुम दास अहम बना दो, मैं दास हूं। आवाज क्या हुआ? क्या आवाज कम हो? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं भी हमें ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा ओके ओके। तो हम क्या है कि अपने आप को दास बना लो, भगवान का दास। ठाकुर जी बार बार कहते हैं हम तो जाने वाला नहीं है, उसको दास बना लो। तीसरा है कर्म, निस्वार्थ रूप से कर्म करो, अपना स्वार्थ मत बनाओ। कर्म करोगे तो धीरे धीरे अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि अपना स्वार्थ चला जाएगा। और राजयोग तो है ही, पतंजलि योग सूत्र में है, चित्त वृत्ति निरोध जब हो जाएगा, अष्टांग योग हो जाएगा, तब वृत्तियों के साथ में मन अलग हो जाएगा। यानी चित्त अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी और मन अलग हो जाएगा। तो ये 4 तो उपाय बताए। ठाकुर ने क्या कहा? श्री रामकृष्ण ने अहंकार के संबंध में काफी कुछ बात की। वो कहते हैं कि वो एक बादल के समान है जो हमारे आवरण में आकर वो सूर्य है उसको ढक लिया। तो अज्ञान का आवरण है, वह ज्ञान को ढक लेता है। ये अहंकार जो है वो ज्ञान को ढक लेता है।
फिर कहते हैं जैसे मैं सामने, आप दोनों बैठे हुए हैं, सामने एक कपड़ा लगा दिया जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। उसी प्रकार ये अहंकार का आवरण, इसके कारण हम भगवान बिल्कुल सामने हैं लेकिन उनको देख नहीं देते। तीसरा दृष्टांत कहते हैं कि पानी है बिल्कुल सीधा, एक लकड़ी डाल दो तो पानी, आधा पानी उधर हो जाता है, आधा पानी इधर हो जाता है। ये लकड़ी है, अहंकार की लकड़ी। इसके कारण आत्मा परमात्मा एक है लेकिन हमको अलग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि उसके बाद ये तो अहंकार का लक्षण है, उसके बाद कहते हैं उपाधि आ जाती है। ऐसा आ गया कि अहंकार बढ़ गया। ठाकुर दृष्टांत देते थे कि वो जा रहे थे घाट पर, तो एक ब्राह्मण बैठा था, उसने कहा, को भट्टाचार्य मशाय कैसे हो? ठाकुर समझ गए, हृदय से कहा, हृदय तुमने देखा नहीं, इसकी आवाज किरकिराने लग गई है, इसके पास पैसा हो गया है इसलिए इस प्रकार का बोल रहा है। तो ये भी कहते थे कि एक मेंढक को 1 रुपया मिल गया, अपने बिल में रख लिया है, हाथी ऊपर से गया तो उसको उसमें ऐसी हिम्मत जो मेरे बिल के ऊपर से चला जाए। तो ये रुपया एक उपाधि है। कपड़े, बढ़िया जूता पहन लिया, कपड़ा पहन लिया तो गले मुंह में लिदु बाबू की ट्यून आने लग जाती है, गाते गाते डांस करते करते चलने लग जाता है। तो ठाकुर कहते हैं कि ये सारा का सारा अहंकार के कारण। तो ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं, भगवान 2 बार हंसते हैं। पता नहीं बाबा कितनी बार हंसते हैं, नहीं हंसते हैं, रोते हैं, कहते हैं ठाकुर, लेकिन कहते हैं कि भगवान 2 बार हंसते हैं। पहली बार जब 2 भाई लड़ते हुए कहते हैं, लाइन खींचते हैं जमीन में, ये आदि, ये जमीन मेरी है, ये तेरी है, एक लाइन खींच रहे हैं। और दूसरा, जब डॉक्टर बीमार को कहता है, माँ को कहता है, माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक कर दूं। ठाकुर बोलते हैं कि अरे मारने वाला, जिलाने वाला तो मैं हूं, और ये डॉक्टर कहता है कि मैं ठीक करूं। यह जमीन किसी की नहीं है, लेकिन दोनों मैं करते हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरी। तो क्या मैं और मेरा, यही अहंकार है। और ना हम मैं नहीं प्रभु तुम, ये है। ये अहंकार को दूर करने का उपाय। ठाकुर बोलते हैं पक्का अहंकार और कच्चा अहंकार। कच्चा बदमाश अहंकार, वो समझता है कि मैं सब कर सकता हूं ये सब। और पक्का अहंकार यानी मैं प्रभु का दास हूं, विनम्र हो जाता है। और हम आगे भी कई बार देखते हैं तो 3 प्रकार के अहंकार हो जाते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक अहंकार जो दूसरों के दोष देखेगा या कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये करो वो करो। सात्विक अहंकार जब वो सोचने लगता है कि मैं भगवान का दास। तो ये छोटा सा मैंने प्रिपेयर किया था। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है? पेलू खाली साफ करना को कल मारा उतर। अच्छा, और सबसे पहले रीता विश्वास। रीता, सरला बहन आप म्यूट कर लीजिए। रीता विश्वास। महाराज, स्वामी जी, question to ask your question because they are related to ego. That's why I said let us start from you. Okay. So the first question is from last week. Is the suffering of loving and considerate people due to the ego that they are loving and considerate? Acha, I ask a question. A mother is loving and considerate. Yes. And mother suffers? Yes, she does sometimes. माँ तो बहुत सफर करती है। हाँ। लेकिन क्या उसको कभी लगता है कि मैं सफर कर रही हूँ? ना, कभी नहीं लगता। उसको कभी लगता है कि मैं अहंकारी हूँ? नो। तो जहां पर लव है, कंसिडरेशन है, वहां पर अहंकार का प्रश्न नहीं उठता। Oh yes, yes. No, it is not a question of ahankar. Ego is not there. If there is a ego, there cannot be love.
Yes, Swamiji, got it. Now it is clear. तो है, अब माँ को तो सफरिंग होती, लेकिन माँ कभी नहीं सोचती कि मुझे सफरिंग होती, कभी नहीं सोचती, कभी No. हाँ, तो where there is love, consideration and compassion, the question of suffering does not arise. Yes, sir. Okay, second question. Second question, all the next three questions are from this ethical culture that you said. How to avoid harmful associations and disturbing influences coming from others, especially when it is a source that comes in the family itself. You see, that is why we become sadhus. Yes. To avoid the sansar. भाई संसार में रहोगे तो सब प्रकार के लोगों के बीच में तुमको रहना पड़ेगा. Yes. डिफरेंट टेम्परामेंट्स वाले लोग हैं, उनके साथ में तुमको रहना पड़ेगा. और उसमें जितना हो सके एकांत में रहो. अपना संसार का ड्यूटी किया, माँ को देखा और दूसरे को देखा, खाना बना दिया, कर दिया, और उसके बाद में you have a solitude in your room as much as possible. Yes. जितना टाइम मिले, प्लान करके जितना टाइम मिले उसका तुम भगवान के चिंतन में यूटिलाइज करो. होता क्या है, वी गो ऑन कंप्लेनिंग दैट ये सिचुएशन है, लेकिन जितनी सिचुएशन है, जितनी एडवांटेजेस हैं और जितना भगवान ने हमको टाइम दिया है उसका फुल्ली उपयोग नहीं करते. तो भगवान भी कहते हैं, अरे भाई उसको तो इतना तो टाइम दिया है मैंने, उसको पर्सनली लाइफ के लिए 5 घंटे हैं उसके पास में, वो यूज तो करती नहीं. अब कहती कि मुझे और टाइम मिले, एकांत मिले. अरे एकांत देंगे भी तो वो काम नहीं कर सकेगी. What my point? Yes, Swamiji. With whatever opportunity and whatever advantages we have got, if we fully use it, भगवान थोड़ा सा और बढ़ा देंगे. Yes, Swamiji. ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि उसमें और अधिक होने लग जाएगा. You will get more time, you will get more opportunity, but make the full use of the opportunity you have already got in this worldly atmosphere. Yes, Swamiji. Is that clear? Yes, Swamiji. Now, how to attune oneself to the higher vibrations? By japa and meditation. Yeah, true. That I feel sometimes. Many a time I have felt while doing japa and meditation, the vibrations are there and one feels a little bit of joy or bliss or calmness. But many a time, even if I'm doing japa or sitting in meditation, I'm unable to attune myself to higher vibrations. ऐसा है कि you make your room, I don't know, most of us we have some freedom. अपने कमरे को तुम पूरा फोटो से भर दो. हाँ, yes, स्वामी जी. I've already done that. मैंने अपने कमरे को धीरे धीरे 4 फोटो थे, अब मेरे कमरे में 30 फोटो हो गए. तो मैं क्या करूं, जहां भी आंख जाती है वहां पे फोटो ठाकुर के माँ के दिख रहे हैं. तो मेरे को ट्यून करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मैं हमेशा वाइब्रेशंस में ही हूँ, ट्यून में ही हूँ. As soon as I come into my room, I am in those vibrations. Now I get. And don't spend any free time. जैसे ही आप कमरे में आए, जब नहीं कर सकेंगे तो स्वाध्याय कर, वो अपने किताब लेके पढ़ने लग जाओ, ट्रांसलेशन करने लग जाओ, गीता के श्लोक का मीनिंग जो है डायरी में लिखने लग जाओ. यानी ये इतनी सारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम अपने वाइब्रेशंस को उसी लेवल पे बनाए रख सकते. यस, गॉट माय पॉइंट. क्योंकि बाकी तो संसार तो है, वो तो उल्टा वाइब्रेशन है. हाँ, वो तो यस. हाँ, तो यू हैव ए प्रोग्राम. मैं तो you see, when I was nowadays I am retired, but when I was in a hospital, I used to go to the outdoor. तो आउटडोर सपोज कई बार तो 12:30 बजे खाने का टाइम है तो कभी कभी लंबा चले जाता है. लेकिन अगर 11 बजे आउटडोर मेरा खत्म होता था तो क्या करता था जानते हो? मैं अपने कमरे में आता था और एप्रन खोले बिना
टेबल पे बैठ जाता था और ट्रांसलेशन वर्क, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ का किताब का ट्रांसलेशन चल रहा था हिंदी में, मैं करने लग जाता था। तो वो 3 घंटे का जो आउटडोर का जो फ्लो था ना, वो विदिन 15 मिनट्स खत्म हो जाता था। उसके बाद में मैं एप्रन खोलूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन मैंने कंप्लीट ब्रेक कर दिया बाहर के संसार से विदिन 10-15 मिनट्स। Got the point? Yes, Swamiji, even problem create करते। Yes, yes. बोलो। Even 5 minutes is important. Yes, yes. तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि मैं टेबल के ऊपर मेरा ट्रांसलेशन का पेपर किताब रहती थी और एप्रन खोले बिना पहले ही उसको बैठ जाता था, ट्रांसलेशन शुरू कर देता था। Yes, तो वो पुराना 10 मिनट 3 घंटे का आउटडोर का जो फ्लो था ना, जेर जो था, वो इमीडिएटली खत्म हो जाता था। हैं? Yes, Swamiji. Okay. Yes, Swamiji. The third question. Yes. Third question is how to switch on the inner state in oneself. Suppose this is in relation to I'm doing work and the work is over. It takes a little bit time to come back. So how to switch on into this inner state in oneself? एक तो ये बता दिया है बात क्या। दूसरी चीज जो है ना, somehow you have to develop a habit of practice of the presence of God. हमेशा ये सोचना है कि भगवान हमारे पास में है। ये समझिए। जैसे एक माँ के पास बच्चा खेलता रहता है, आसपास खेलता रहे, पास में नहीं भी रहे, तो she has a consciousness that the child is there. Yes, yes, स्वामी जी। 10 मिनट आवाज नहीं आएगी तो जाके देखेगी कि क्या हुआ, क्या कर रहा है। Yes, स्वामी जी। And practice of the presence of God, वो ब्रदर लॉरेंस थे ना, उनकी किताब है वो। Yes, yes, स्वामी जी। That I am reading and also your article. I mean, वो तो so many techniques are there. Remain constantly, even संसार का काम करते हुए भी ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे पास में। खाना बनाने का टाइम आप लोगों को तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। Yes, why? आप लेडीज खाना बनाती है ना, तो आपका माइंड तो खाली रहता है। By practice you are making by habit you are making food, लेकिन half 50% of mind is empty. You consider that God is standing with you on the right side. Yes. Go on talking to him. It can easily be done. So many people do it. So a practice of presence of God, स्वाध्याय, constantly thinking करना, और फिर ये भी सोचना है कि मैं रीता बिस्वाल नहीं हूँ, रीता रामकृष्ण हूँ। Got my point? I am not Rita Biswal. I am Rita Ramkrishna. I am the daughter of Ramkrishna. Make stronger, do this identity strong. So you have got so many programs, practice of presence of God, identity, changing our identity strongly. And then whenever 10-15 minutes you reading, doing reading, etc., and cut away all the worldly thoughts. Yes, Swamiji. Yes, this is very, very important. Yes, Swamiji. Thank you, Swamiji. Thank you. Now, अब किसका टर्न है क्वेश्चन का? उसके बाद में आएगा शिवानी। शिवानी है क्या? नहीं है। शिवानी इज नॉट देयर। जी महाराज, आई एम हियर। हाँ भाई, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो। हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि when there is conflict among ego and intellect, we know intellect is right ethically. Still, due to our nature or habits, we follow ego or we want to follow the ego. How can we improve? ऐसा है कि आपके इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
intellect or reason or ethical sense must become itna strong that it overrules the ego. स्वाध्याय के द्वारा, संतों के जीवनी के द्वारा अपने जो ईगो हमको खींच रहा है, हमारी वासनाएं जो हमको खींच रही हैं, ये हमको हम जो करना चाहते हैं, जो अच्छा ठीक समझते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं. तो यू हैव टू मेक द इंटेलेक्ट और जो एथिकल फीलिंग जो है तुम्हारा, जो है हायर इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी. क्योंकि ऐसा है ना कि आप लोग, हम लोगों का तो प्रॉब्लम कम है, लेकिन हम लोग भी अगर जब खाने के लिए बैठे तो सकम हो जाते हैं उसमें. बढ़िया खाना मिला तो हम इंटेलेक्ट गोज अवे. किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा अहंकार गर्म हो जाता है. तो उसके लिए बार बार विचार करना पड़ता है. इसीलिए मैंने शुरू में जो तुमको विचार का बात कराई ना, अहंकार क्या है. इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आत्मा विद जितने व्हीकल्स हैं या जितने कोश हैं, उसका आत्मा के साथ आइडेंटिफिकेशन. इसलिए विचार के द्वारा स्ट्रॉन्ग करो अपने इंटेलेक्ट को कि अरे भाई, ये इंटेलेक्ट को कहना है कि अरे भाई देखो, अहंकार का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं. जरा विचार करोगे तो देखोगे कि प्राण अलग हो गया, बुद्धि अलग हो गया, ये मन अलग हो गया. इनके साथ जब आत्मा जुड़ गई थी तब अहंकार. तो विचार के द्वारा इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, स्वाध्याय करो, संतों की जीवनी पढ़ो और इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रहो कि जिससे उसके बाद में तुम्हारा ईगो नहीं असर्ट कर सके. जी महाराज. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ईगो इतनी तरह से तो जाने आसानी से तो जाने वाला है नहीं. ओके ओके महाराज, थैंक यू. बालसुब्रमण्यम. यस बाला. प्रणाम महाराज. You had asked 3 questions. Yes, Bharat. All these are manifestations of ego. Yes, so the clear yes, simple yes, है. ऐसा है कि try to emphasize on the mind. ये अभी जो बात कही ना, उसी से रिलेटेड है. इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, एम्फेसाइज मन के ऊपर करो कि ये जितने मेरे रिएक्शंस हो रहे हैं, आपने 3 रिएक्शन बताए ना, और ये 3 रिएक्शंस ऑफ द माइंड, दीज आर ऑफ ईगो एंड दे आर हार्मफुल टू मी. इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, संसार मेरे बॉन्डेज को बढ़ाने वाले हैं. सो उसको स्ट्रॉन्ग, ये एम्फेसाइज ऑन द माइंड दिस थिंग. If you do this, feel sorry that ego is still there. You must feel sorry. बोलने से तो होगा नहीं. You have to emphasize the mind कि oh, I am still in such a state. Repeatedly I go down. My mind go down. I have reactions to people what we are seeing, telling, etc. So I have to make myself strong. Okay? This is a general explanation. Okay. दिलीप भाई. जी प्रणाम महाराज जी. ईगो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो. जी. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ईगो रिलेटेड बाद में क्वेश्चन भी दिए हैं. जी जी. उधर से एक आपने प्रश्न पूछा था, when God is doing everything. उसके बाद में फिर वह है, आपने ये कहा था ईश्वर सर्वभूतानाम, वो क्या है? रिद्देशे. हाँ, तुमने तिष्ठति अर्जुन. हैं? रिद्देशे अर्जुन तिष्ठति अर्जुन. ईश्वर सर्वभूतानां रिद्देशे अर्जुन तिष्ठति. और इन्होंने कहा था प्रकृति क्रियमाणानि गुणे गुणेषु, है ना दिलीप भाई? जी जी महाराज जी. बोलो तो उसको एक श्लोक क्वेश्चन को. क्वेश्चन को बोलो तो. पहले वाला क्वेश्चन अलग से था. महाराज जी मेरा क्वेश्चन तो ये कहा है कि भाई प्रकृति क्रियमाणानि गुणा गुणेषु सर्वतः, उसके बाद फिर अहंकार क्यों आता है?
पर मेरे पास ये इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट गया महाराज जी, डायरेक्ट आपको गया था, मेरे पास नहीं आया यहाँ पे जी। ओके 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 ओके। इन्होंने ये कहा कि सब कुछ तो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति सब कर रही है, गुणा गुणेषु, गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि, सब प्राणियों को चला रहे हैं। तो फिर अहंकार का प्रश्न नहीं कहाँ आता है? जी महाराज जी, ये है ना प्रश्न, अहंकार का प्रश्न नहीं कहाँ? यही प्रश्न है मेरा। इसको रियलाइज करना ही तो आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति है, वही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये तो फिलॉसफी है। आप स्वीकार मानते हो क्या? हर क्षण आपके मन में ये विचार रहना चाहिए ये ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर समस्त प्राणियों के बीच में सबको चला रहे हैं। या कहो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति सत्वगुण तमोगुण रजोगुण के द्वारा सब कुछ कर रही है। या तो ईश्वर कर रहा है या प्रकृति कर रहा है। तो फिर मैं कहाँ आता हूँ? मैं तो है ही नहीं, फिर अहंकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। यही आपका प्रश्न है। और मेरा यही कहना, यही प्रश्न नहीं, ये उत्तर है। ये गीता अगर आप इसमें प्रतिष्ठित हो गए तो आप अहंकार की प्रॉब्लम ही चले गए। अहंकार है ही नहीं फिर, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। या तो भगवान कर रहे हैं या प्रकृति कर रही है, तो अहंकार कहाँ आएगा? सो ये तो आंसर है। अहंकार की सारी प्रॉब्लम का आंसर यही है, भगवान करा रहे हैं बस, या प्रकृति कर रही है। फिर ईगो कहाँ आया? खत्म हो गया। इसी को ये गीता का सार है, इसी को जीवन में उतारना है कि जब कर रहे हैं जो यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि तत् तपस्यसि कौन्तेय मदर्पः कुरु। भगवान ने कहा कि जो कुछ करता है वो तुम मुझे अर्पित कर दो, या सोचो कि मैं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं। बस इसी को जीवन में उतारो, अहंकार की प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है जी, बराबर जी महाराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट। अब एक आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, जो बाद में जो भेजे थे वो है कि नहीं है? हाँ हाँ, वो है मेरे पास सब कुछ। ना बताओ। तो नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट? बड़ा सुंदर प्रश्न है। दोनों ईगो हैं जी, लेकिन एक अच्छा ईगो है, एक बुरा ईगो है। स्वामी विवेकानंद ने तो बार बार कहा था, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, तुम सब कुछ कर सकते हो, सबसे महान हो तुम। ये ईगो पे ही तो निर्भर। स्वामी विवेकानंद का सारा संदेश इसी पर है। लोगों उन्होंने देखा है कि भारत में के लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, अपने आप को दुर्बल समझते हैं, गरीब समझते हैं, ऐसा करते हैं। अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम महान बन सकते हो, तुम हो महान। आत्मविश्वास, महान बन सकते हो, क्या हो, महान हो। अरे ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ पढ़ के ही तो हम साधु बन गए, आत्मविश्वास आ गया, मेडिकल कॉलेज में बढ़िया मार्क्स आने लग गए। ये सब स्वामी विवेकानंद। तो ये आत्मविश्वास तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है कि हायर, इससे क्या है कि हायर आध्यात्मिक स्तर पर हम जा सकते हैं और उसके बाद में हम और महान बन सकते हैं। और यहाँ पर मुझे याद आ गई, कहा जाता है श्री रामकृष्ण के एक और भक्त थे, नाग महाशय, मालूम है? और नाग महाशय गृहस्थ थे और अत्यंत विनम्र। वो घोड़ा गाड़ी पे भी नहीं बैठते थे कि बड़ा घोड़े को तकलीफ होगी, बल्कि गाड़ी को खींचते थे कि घोड़े को तकलीफ ना हो। अपने को सबसे विनम्र समझते थे। जहाँ लाइन में भी लगना हो तो सबसे पीछे लगना। तो उनके लिए कहते थे कि माया जो है उनको बांधने के लिए आई, तो वो इतने छोटे हो गए, उनका अहंकार इतना छोटा हो गया कि माया की गठान में भी नहीं बंधा। रस्सी बांधोगे ना तो इतनी बारीक चीज होगी तो वो रस्सी में भी नहीं आई। और माया जब स्वामी विवेकानंद को बांधने गई तो वो इतने महान हो गए, इतने हो गए, हम ब्रह्मास्मि हो गए
कि माया की रस्सी जो है वो छोटी पड़ी। तो ये दो एक्सट्रीम है अहंकार के। एक है अपने अहंकार को एकदम हीन करो, हीन करो, हीन करो कि मैं कुछ भी नहीं, और दूसरा उसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं संसार के समस्त प्राणियों के साथी। तो ये आत्मविश्वास अगर ठीक ठीक आध्यात्मिक आत्मविश्वास है तो बहुत श्रेष्ठ बात। साधक जो है बिना आत्मविश्वास के कोई साधना भी तो नहीं कर सकता। तो अहंकार तो रहेगा ही, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो वो और ईगो जो है वो तो बदमाश ईगो है, मैं ये हूँ, दूसरा मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, मैं सबसे बढ़िया हूँ, ये प्रकार की बातें जो है ना, ये अहंकार जो है, ये जिसे कहा ना मैंने कि ये तामसिक अहंकार या राजसिक अहंकार। और सेल्फ रिस्पेक्ट को हम सात्विक अहंकार को। सेकंड क्वेश्चन। तो महाराज ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी सात्विक अहंकार में आएगा, कह सकते हो उस प्रकार से, ठीक ठीक होना चाहिए। देखो ऐसा है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो इट मस्ट आल्सो गिव सेल्फ रिस्पेक्ट टू अदर्स। मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है लेकिन मैं दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, ये नहीं चलेगा। It is not so easy. Yeah. Now my second question is, how can we understand that I am egoistic? That's a problem. देखो भाई, अभी जो बात की ना, हम सबके सब अहंकारी हैं, सब ईगोइस्टिक। तो ये मत सोचो कि आप अहंकार की कहाँ परिभाषा कैसे करोगे, कहाँ डिवाइड करोगे कि ये अच्छा अहंकार है, ये बुरा अहंकार है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये गलत रिस्पेक्ट है। इसलिए आपका ये प्रश्न जो है ना, अब आई हैव गॉट ईगो, तब ईगो का हम पूछेंगे आपसे कि अहंकार की परिभाषा क्या है। तो महाराज हमने क्या छोड़ना ताकि ईगो छूट जाए, ये सवाल आता है। वो तो आगे आया ना, उसने कहा ना, स्वामी जी बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, ईगो कहीं नहीं जा सकता, वो बना रहेगा। नहीं, सुना ही नहीं जाए तो क्या करो, उसको भक्त ईगो, मैं प्रभु का दास हूं, ये दास ईगो बना लो। जी जी, भक्त का ईगो बना लो। हाँ मैं हूँ। Is attachment of wrong image of oneself is ego? नहीं, वो तो बोला ना, अभी डिस्कस हुआ क्या, attachment of wrong image is an ego. मैं अपने वही मैंने कहा ना, मैं जैसा हूँ वैसा तो हूँ नहीं, मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता हूँ, बड़ा अच्छा समझता हूँ और सोचता हूँ ये तो अहंकार है। एक प्रकार से आपने जो कहा वो ठीक ही है कि मैं अपने आप को तो बड़ा गधा हूँ, अकल तो है नहीं, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान। तो ये रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ आवर सेल्फ जो है वो एक प्रकार से तो आपने जो कहा वो ठीक ही है। तो मैंने जैसा कहा ना कि 3 टाइप के, सात्विक, राजसिक और तामसिक ईगो। ये जो है अब रॉन्ग कंसेप्ट ये है राजसिक ईगो। लेकिन सात्विक ईगो विनम्र हो जाता है, आदमी भगवान का भक्त हो जाता है। तो उसमें भी अहंकार तो रहता है, मैं भगवान का भक्त हूँ। हनुमान जी ने मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं समुद्र को पार कर सकता हूँ। क्यों? मैं भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मैं खुद में ताकत है ये नहीं, भूल जाते थे अपने आप। लेकिन जब राम का नाम किया, राम की शक्ति से मैं चला गया। ये बात ठीक है। एक सवाल ये आता है सामाजिक दृष्टि से कि जब हम बिल्कुल पोलाइट हो जाते हैं और ईगो छोड़ देते हैं, then the other people they think that you are बिना अक्ल वाला आदमी हो तुम। लिखते हैं, खुद ही लिखे हैं आर्टिकल जी ने। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं करें, चुपचाप रहे, मतलब चुप रहना अच्छा है।
लेकिन चुप लेके अगर दूसरे लोग आपका डिसएडवांटेज ले तो ठीक नहीं है। बीच बीच में बोलना भी चाहिए। वो स्वयं यतिशर इस आर्टिकल में है, इसके पहले वाले में है या इसी में है, ओके, बोलना भी चाहिए। एक तो यह है कि भाई शांत रहना, चुप रहना अच्छा है, तो ठीक ही है, लेकिन इतना चुप नहीं रहना है कि लोग आके चांटे मारने लग जाए, चांटे मारे, गालियां दे और आप चुपचाप बैठे रहे, ये नहीं है ठीक। तो मैं इतनी भी क्षमता होनी चाहिए कि उसने एक गाली दी तो हम 10 गाली दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं है। तो ये शक्ति की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि भाई निरहंकार हो गए तो अरे इसमें तो कुछ दम नहीं है, तो कोई एडवांटेज नहीं ले सके आपका, ये ध्यान रखें। Right, Maharaj. Now my next question is there any good or sattvic ego? पक्का ईगो इज सात्विक ईगो, जैसे आपने बताया। वही तो हो गया ना बात, हो गई। हाँ, पर बराबर। हाँ, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज महाराज जी, if Maharaj ji, if we devotees are gossiping and if you come there and talk with one of the devotees and neglect other devotees and you go away, in that case the devotee with whom you talk and he becomes egoistic, then how to avoid it? अब ये तो किसके ऊपर बोल रहे हो? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को अहंकार हुआ उसको क्या ईगो होगा और इसको अवॉइड कैसे किया जाए? अरे ये अरे भाई ये ईगो तो सब जगह रहेगा। साधु लोग बैठे हुए हैं, भक्त आए, भक्त ने केवल सबको, एक साधु को प्रणाम किया, दूसरे साधु को नहीं प्रणाम किया जी। तो क्या करेंगे? अरे ये तो संसार में चलता ही रहेगा। और इसके लिए अगर कोई ईगो की बात, उसको अगर वो अहंकार हो जाता है, उसको बुरा लगता है, तो वो उसी की गलती है। संसार में तो ये सब चलता रहता है। अब गाड़ी में जाओगे, कार में, ट्रेन में जाओगे, तो 2-4 आदमी, हम भी पहले गए थे, ट्रेन में जाते थे जब नए नए साधु थे, तो 2 आदमी 4 आदमी अपने दोस्त को बुलाता, अरे यार इधर आ, इधर आ, अरे ये साधु जो देख तो, मेरे को सुना के मेरे को वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या करोगे? साधु हैं तो गेरवा देख के कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो एस्केपिस्ट हैं, बच गया है, ये ढोंग कर रहा है, और दूसरा जो है वो प्रणाम करेगा। अब क्या करोगे? अरे भाई ये संसार में होता रहेगा, कोई उपेक्षा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, ये तो संसार में होता रहेगा। तो 5 आदमी बैठे हैं, एक आदमी आके बात करके, एक आदमी से बात करके चला गया, तो दूसरों को अगर अहंकार हुआ तो वो कष्ट पाए, क्या करना? ये छोटी मोटी बातें संसार में होती रहेंगी बाबा। और इसके लिए अगर आपको दिमाग खराब करोगे तो फिर आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। ये संसार की उपेक्षा करनी ही पड़ेगी, व्यवहार की उपेक्षा करनी पड़ेगी। ये बहुत फंडामेंटल्स है स्पिरिचुअल लाइफ के, फंडामेंटल्स है जीवन के। ये इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन सब में पढ़ो तो यही सब बातें लिखी हुई हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे स्थान पर जाके रहना चाहिए कि जहाँ पर लोग आपकी निंदा करें। ऐसे स्थान पर रहिए कि आपकी उपेक्षा की जावे। ये लिखा हुआ है इस किताबों में। और अभी एक मैंने बोला नहीं, बोलना बहुत जरूरी था, वो है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी का। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नाम सुना सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी? उनके 8-10 शिष्य थे, उनके 8-10 शिष्य थे। और सेंट फ्रांसिस एसिसी कहते हैं कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, परफेक्शन क्या है? पूर्णता यानी आध्यात्मिक जीवन का उत्कर्ष जो है वो क्या है? क्या तुम हवा में उड़ सको? वो परफेक्शन नहीं है। तुम दूसरे के मन की बात जान सको? वो परफेक्शन नहीं है। और इस प्रकार की बहुत सारी उन्होंने महान महान बातें बताई और कहते हैं कि दिस इज नॉट परफेक्शन। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करें, इतने लोग
प्रशंसा करें, आप बड़ा बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं वाह वाह कितना अच्छा है, ये परफेक्शन नहीं है। आपके बहुत सारे आर्टिकल्स की किताब परफेक्शन नहीं है, ये पूर्णता या आदर्श नहीं है। अगर हम अपने मोनेस्ट्री में अभी जा रहे हैं, थके मांदे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, बारिश बर्फ पड़ रही है, हम जाके हमारी मोनेस्ट्री में, हमारे मठ में जाके ठक 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 दरवाजा करें, कोई बोले कौन है, तो कि भाई हम आपके ही साधु हैं, वो खोले दरवाजा, तो हमारे साधु बदमाश बदमाश कहीं के, चले जाओ, हम तो जानते नहीं तुम, तो दरवाजा बंद कर दे। फिर आप वो डंडा लेके आवे और मारे, तुम लोग धूर्त हो, बदमाश हो, ढोंगी हो, डंडा लेके मारे। ऐसे 2-3 बात उसमें, उपेक्षा की बात और इस प्रकार की दंड देने की बात, ये सब कहे। और तब वो सेंट फ्रांसिस कहते हैं कि ऐसा जब करे तब हम सोचें कि हाँ हम ठीक ठीक बदमाशी हैं, हम गए बीते हैं, हम दंड कहने के लायक हैं। जब ये विचार मन में आवे तब समझना दिस इज परफेक्शन। पूर्ण निरहंकारिता और उपेक्षा के मन, निरहंकार रहना, उपेक्षा के निम्नतर स्तर पर जाना, पहुंचना, उसमें व्यक्ति यह है, उसका परफेक्शन जो है, पूर्णता का यह लक्षण है। बाबा इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन आंसर्स का, आध्यात्मिक जीवन से क्वेश्चन आंसर नहीं। पूर्ण निरहंकारिता का ये लक्षण सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी बता, और हम छोटे छोटे अहंकार को लेके उसके ऊपर डिस्कशन करते। ठीक है जी महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, अब सुबीर, अब हमारे दूसरे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। ईगो के क्वेश्चंस वगैरह हो गए हैं। सुबीर बोलो। हाँ महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन लव इज इंडीड मिक्स्ड विथ सेल्फिशनेस, so how does one reduce selfishness? Is it by detachment alone, because that comes with great difficulty, or is there some other process that we can try? अरे what detachment से क्या होने वाला है? You have to practice unselfishness by helping others as much as possible, loving others, giving to others other than the family. फैमिली में भी आपको निस्वार्थ होकर रहना है और लोगों के, बाहर के लोगों के भी सेवा करना है, केवल डिटैचमेंट नहीं। डिटैचमेंट तो केवल मेंटल चीज होती है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट मदर, यू हैव टू गिव। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी अंडर एस्टिमेट और मिसअंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जी महाराज। मैं साधु बन गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो ये है कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता है, फिजिकली मेंटली उसमें स्ट्रेंथ कम हो गई, दैट इज ऑल राइट। लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मुझे दूसरों के लिए करना चाहिए। मैं तो डिटैच्ड हूँ, मेरे को क्या लेना देना है, आश्रम जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, मैं डिटैच्ड हूँ। दिस इज नॉट इनफ। जी जी। टू योर कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी है फिजिकल और मेंटली, लोगों की सेवा कीजिए। ये है टेस्ट ऑफ अनसेल्फिशनेस, नॉट मियरली डिटैचमेंट। जी महाराज जी, मेरे को यही लगा कि डिटैचमेंट में भी क्या है, ना डिटैचमेंट में अंदर क्या है कि वी गेट डिसीव आवरसेल्व्स, आवर सेल्फिशनेस रिमेन्स एंड वी से वी आर डिटैच्ड। प्रैक्टिकली यू हैव टू शो दैट यू आर अनसेल्फिश। जी महाराज, सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Otherwise, the thinking of detachment itself becomes selfishness. बिल्कुल महाराज। ना दैट इज, मैं तो उसको लाता ही नहीं हूँ सेल्फिशनेस और अनसेल्फिशनेस। जी जी, ठीक है, करने में करना पड़ेगा। ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, in this article it is said, value the personality because of the principle and not for its own sake. What is principle क्या है?
यतीश्वरानंद जी प्रिंसिपल की बात जब करते हैं तब वो टॉकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और गॉड। अच्छा, वो यदि कहते हैं कि तुम वैल्यू पर्सनालिटी, डोंट वैल्यू द पर्सनालिटी, वो खुद की बात कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा, हम लोग यतीश्वरानंद जी को बहुत प्यार करते थे। जी जी, इट वाज ए ट्रेमेंडस पर्सनालिटी, हम्म, इतने अद्भुत पर्सनालिटी थे कि बस। ओके ओके, मैं समझ गया। और वो कह रहे हैं कि अरे पर्सनालिटी को नहीं, इसके भीतर जो प्रिंसिपल है उसको प्यार करो, यानी गॉड विद इन मी। हाँ, सत्ता को। Don't be attached to me, but get attached to God within me. That's the idea. Right, Maharaj. The principle behind the personality. Yes, Maharaj. Yes. This is very important. Right. यानी ये तो उनके, क्योंकि वो इतना आकर्षक पर्सनालिटी थी उनकी कि बात में आप लोग फोटो अभी भी देखोगे तो दिखेंगे कितने आकर्षक। जी महाराज। हम लोग तो यानी देखते रह जाते थे उनको, बस इतने आकर्षक। And yet he is telling, don't be attached to me, don't be attached to me as personality. The God within me, that is you get attached to that. जी महाराज जी। Third question महाराज जी, how to harmonize self-effort and bowing to the will of the mother? Is it the same as saying that one can bow to the will of the mother only after full self-effort? और does it occur simultaneously? इस आर्टिकल में यतीश्वरानंद जी ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है। आप देखो सेल्फ सरेंडर का जो पोर्शन है वहां पर, उसमें वेरी क्लियरली लिखा है कि ट्रू सेल्फ सरेंडर कम्स आफ्टर मैक्सिमम सेल्फ एफर्ट। जी जी, फुल सेल्फ एफर्ट। मैं तो बाबा सरेंडर को समझता ही नहीं। मुझे सच पूछा जाए प्रैक्टिकली, पर्सनली मुझे सेल्फ सरेंडर समझ में नहीं आता। जी जी जी। अब सेल्फ अफोर्ड करते जाइए, उसके बाद जब पूरे थक जाओगे तब शरणागति आएगी। हाँ महाराज जी, we have not reached the stage of self surrender, so how can we understand self surrender? अभी तो सेल्फ एफर्ट करने का वक्त है, राइट महाराज? ना, इट इज ऑल सेल्फ सरेंडर। उसमें वेरी क्लियरली यतीश्वरानंद जी कहते हैं सेल्फ एफर्ट किए जाइए, मैक्सिमम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। होगा उसके बाद में लगेगा अरे बाबा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया महाराज। एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, the second way in which, wait a minute, जी ये तो है one. Second is if you want to do it both together, अच्छा, उसके लिए भी ये है कि भाई सुबह भगवान को याद करो और सारी रात के बाद में दिन के जब हो आपको शरणागत करो। वो एक मेरा आर्टिकल है उसमें क्या है, हाँ बीच बीच में एक कर्म किया, उसके बाद मैंने जो बात तुमसे बात भी किया, पेशेंट देखो उसके पहले भगवान को याद करो, पेशेंट देखने के बाद भगवान को याद करके सरेंडर कर लो। सो इन मेनी वेज इट कैन बी डन। जी जी जी, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, what is meant by harmonizing growth which is done physically, intellectually, morally and spiritually? This was stated by Swami Yatishwaranand ji as the greatest lesson he had learned from Swami Brahmananda. तो वो ये चारों को इकट्ठे ले रहे हैं, तो इसका थोड़ा समझाइएगा, what does he mean by that? यानी ऐसा है कि ये ना यतीश ब्रह्मानंद जी ये पूछते थे कि तुम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो खुद करते थे। यतीश्वरानंद जी तो बूढ़ी उम्र में भी वो एक्सरसाइज करते थे, हाथ चलाते थे। हाँ, तो एक ब्रह्मचारी जो सेवक था वो बोलता था 1 2 3 4 5, तो वो हाथ ऊपर उठाया, नीचे किया, ऐसा सब करते थे। तो फिजिकली यू हैव टू रिमेन फिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटेलेक्चुअली, दिमाग, जैसे वो बच्चे की बात कही ना, कि सिर दर्द हो गया है, दिमाग खाली हो गया, अरे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, भक्त हो गए, ऐसे नहीं काम चलेगा। हम बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, वी आर कीपिंग अवर इंटेलेक्ट इंटैक्ट। जी, स्वाध्याय। तो फिजिकली, मेंटली, morally you have to be careful, and spiritually of course भजन वगैरह करना। ठीक है, समझ गया। ऑल दी हार्मोनियस थिंग्स, केवल कुछ जो अब आप जैसे शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो वो क्या बोलते हैं, कर्म त्याग करो पूरी तरह से। तो सब कर्म त्याग कर देते हैं, फिर वो क्रिया अनुष्ठान वगैरह भी नहीं करेंगे,
जो आपका स्वधर्म है वो भी नहीं करेंगे। तो ये वो पुराने ऑर्थोडॉक्स उसके अनुसार है कि ज्ञान जो है तो वो कर्म को, ज्ञान जो है वो कर्म और ज्ञान विरोधी है। लेकिन स्वयं शंकराचार्य ने कितना कर्म किया बोलो तो? जी 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 बिल्कुल। 70 कमेंट्रीज किए हैं, 4 मठ स्थापित किए हैं, कितने प्रवचन दिए हैं, ये सब किया। तो कर्म और स्वाध्याय, उसके साथ ही साथ फिजिकली एक्टिव, अपने शरीर को ठीक रखना, ये 4 और सब चीजें जो हैं वो एक साथ होनी चाहिए, विरोध नहीं होना। जी जी। क्या कुछ लोग क्या है कि ध्यान जब करेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं। और कुछ लोग जो है कर्म बिल्कुल छोड़ देंगे, बस ध्यान जब करते रहेंगे और सोते रहेंगे, ये भी ठीक। जी जी ओके ओके महाराज जी, समझ गए महाराज। प्रणाम महाराज। सपना। प्रणाम महाराज। हाँ भाई बोलो। हाँ, the first question is, the very moment the impulses rise in us, we should try to expand our consciousness, for then these impulses at once disappear. What should we actually practice in this situation? No, what is that? During what you said? Impulse. Here it's written the second page, senses के अंदर है. The very moment the impulses rise in us, we should try to expand our consciousness. So for then, yeah, the point is कि consciousness को, I mean, expand करना. That's the idea, and that is done by japa and meditation. You see, एक बहुत important बात अभी डिस्कस भी हो गया है कुछ पॉइंट में कि भाई सब समय, यतीश्वरन जी बार बार कहते हैं, you should always be in a mood to go to God. संसार में इतने हमेशा इतने मस्त फंसो कि उसके बाद में जब ध्यान करने का टाइम आ जाए तो मूड नहीं आ रहा है। जी जी। हम तो ये लगा रहना चाहिए कि सब समय भगवान के पास जाएं। वहाँ रायपुर में जब हमने डिस्पेंसरी शुरू की तो हमने क्या किया था, एक हमारा आई डिपार्टमेंट था, छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा 1/4 ऑफ ए रूम जैसा है ना, ऐसा था। वहां पे थोड़ा सा हमने वो कुछ इंस्ट्रूमेंट रख दिए थे बस, और वो सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर आता था बस। वहां पे हमने क्या किया, ठाकुर माँ स्वामी जी के फोटो रख दी, और जो हमारे डॉक्टर्स थे, लेडी डॉक्टर्स थे, विजिटिंग डिवोटीज थे, तो हम कहते थे कि आउटडोर में पेशेंट देखते देखते बीच में घंटे भर के बाद में, आधे घंटे के बाद में वहां 5-10 मिनट के लिए उस कमरे में चले जाओ, 5-10 मिनट बैठ के ध्यान कर लेना, फिर वापस। यानी आउटडोर डिस्पेंसरी में हमने ये अरेंजमेंट किया था, एक श्राइन बना। तो वी मस्ट बी ऑलवेज इन ए मूड टू गो टुवर्ड्स गॉड, अदरवाइज हाँ वो you have not to make a differentiation between this is work और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर भगवान के बाद जाएंगे, ये डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही। बीच में बना लिया 15 मिनट के, आधे घंटे के बाद फट से चले गए, 1 घंटे बाद चले गए, 5 मिनट के लिए क्वाइट बैठ गए, थोड़ा सा कर लिया, फोटो देख लिया। यस महाराज, यस समझ गई। And second question is, sometimes it is hard to decide when to leave the situation to my Thakur. I surrender की बात ही है. How can I understand the right moment for surrender? देखो अभी मैंने जैसा बात कही है, जी जी भाई सेल्फ एफर्ट पूरा कीजिए जी, लेकिन आप दूसरे आदमी को तो चेंज नहीं कर सकते। अरे भाई आपका पैसा जो है मार्केट में, वो दाल का जो रेट है वो बढ़ गया है, तो आप उसको तो कम नहीं कर सकते ना। You have to surrender to the situation. अच्छा। There are some situations in your hand, अपने आप को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। नहीं। और अब जनरेटर रात को खराब हो गया, तो गर्मी हो गई कमरे में, तब क्या करेंगे? सरेंडर किसी वक्त कर सकते हैं क्या? So you know what you can do, what you cannot do. Okay. बस
इतना ही रखो, उससे ज्यादा बढ़ाने की बात, करने की बात नहीं। ठीक। और थर्ड क्वेश्चन ये है महाराज, व्हेन वी फील एनी इंटेंस इमोशन, हाउ टू टर्न इट एट दैट वेरी मोमेंट टुवर्ड्स गॉड? देखो भाई, वेरी मोमेंट क्या है, अगर खूब गुस्सा आ जावे तो ठाकुर क्या करते थे, वो मंदिर चले जाते थे इमीडिएटली। कुछ डिस्टरबेंस हुआ मन में, जरा इमीडिएटली माँ के पास चले गए और माँ को बोलने लग गए, माँ ये क्या किया, वो क्या किया, झगड़ा करना तो माँ के करने लग गए। अच्छा। तो whenever he had a difficulty, he immediately went to माँ। Yes, yes. Can we do it? और वैसे तो कहा है कि भाई लोभ करना हो तो भगवान का करो, यदि क्रोध करना हो तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं, उनसे क्रोध करो। हाँ। और वो ठाकुर बोलते हैं कि एक माँ, एक लेडी थी, वो अपने भांजे को बहुत प्यार करती थी, तो ठाकुर ने कहा उसी के अंदर भगवान को देखने का प्रयत्न करो। जी। So these are the ways in which the emotions are turned towards God. आप तुमने कहा immediately, तो immediately क्या है कि emotions सही प्रकार के हो सकते हैं। राग द्वेष आया है, या फिर प्रेम आया है, क्रोध आया है, तो ऐसे में एक जगह मैंने एक क्रिश्चियन उसके अंदर है कि हाउ टू टर्न इमोशंस टुवर्ड्स गॉड, तो वो भगवान से प्रार्थना करना, वहां पे वो लोग प्रार्थना की बात करते हैं। अच्छा अच्छा। क्रिश्चियनिटी में दे टॉक मोर अबाउट प्रेयर। अच्छा, ओके। वो भी कर सकते हो भगवान से, जब भी कुछ इमोशंस हुए, बहुत डिस्टर्बिंग हुए, तो प्रभु से प्रार्थना करो। क्या हो जाता है कि इमोशन से इंटेंसिटी आती है। अगर यूं ध्यान जब करते हैं तो ढीला ढीला होता है। लेकिन जब इंटेंसिटी आ गई तब जब भी बढ़िया हो जाए। Yes, yes. Provided you can turn it towards it. Yes, yes, Maharaj. Yes. Pranam Maharaj, thank you. अच्छा, अब कौन बचा? सतीश वेग इतु। सतीश बोलो। दिलीप भाई, तुम्हारे और भी क्वेश्चंस हैं, उसको ले लेंगे जब टाइम मिले। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। सतीश बोल। एक मिनट पंखा चलाता हूँ। बोलो महाराज। संजय हो क्या? जी महाराज। अरे भाई, ये तो अभी 1 घंटा तो हो गया, बिल्कुल रुका नहीं। हाँ ठीक चल रहा है महाराज, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो जी। संजय। सतीश। प्रणाम महाराज। महाराज वैसे तो क्वेश्चन था तुम्हारा। महाराज वो क्वेश्चन तो मेरे ऑलमोस्ट आंसर्ड हो गए, जो पहले 3 क्वेश्चंस थे। मैं ही आस्क द 4th क्वेश्चन ऑन ईगो। वो आप तुम्हारा जो तुमने जो भेजा था वो एक क्वेश्चन था जिसको बचा हुआ था, वो पूछना चाहते हो क्या? उसका फॉलो अप? हाँ नहीं महाराज, वो तो चलो बहुत क्वेश्चन था ही। मैं ये ईगो पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो ईगो पर क्वेश्चन है। बोलो बोलो, जो भी पूछना पूछो। हाँ जी महाराज। प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड हो गया, रूल्स ऑफ हेल्थ वगैरह हो गया, सारी बात हो गई ना? ये सारी बातें हो गई। महाराज ये जो ईगो है, ये तो बहुत जे आप आइडियल रखा है आपने, जैसे कि आपने सेंट ऑफ असीसी का जो एग्जांपल दिया है, तो ये उसको देख के हमारा मन बहुत घबराता है। तो इट ऑलवेज wants respect and regard and shudders from disrespect and disregard। तो हम तो सब हमेशा रिस्पेक्ट ही चाहते हैं, डिसरिगार्ड तो कभी नहीं। तो ये आइडियल तो बहुत हायर है, लेकिन हमारा जो माइंड ऑफ है वो लोअर स्टेट पर होता है। ईगो ना वो तो ठीक है, आइडियल तो हाई रखना पड़ेगा। अरे ईश्वर दर्शन भगवान ईश्वर दर्शन जो है वो लक्ष्य है ना।
लेकिन हम जहाँ पर है उसी से आपको लक्ष्य बनाना का आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अभी तो मन एकाग्र नहीं होता, तो अभी तो एकाग्र मन को एकाग्र करना ही हमारा लक्ष्य है। जी महाराज जी, उसमें ही करते, उसमें ही लगे रहना पड़ेगा। तो लक्ष्य जो है वो भले ऊंचा रहे, लेकिन हमको प्लान करना है जिस लेवल पे हैं हम उससे चलने। और ये देखो, तुमको ये तो लगेगा कि भाई 5 साल पहले में जैसा था उससे मुझ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। राइट राइट, इतना कम से कम होना चाहिए। जी जी, यही मेरा क्वेश्चन था गुड़िया। यस, हम जो अनसेल्फिशनेस की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि वी आर हाईली सेल्फिश। हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में तो बहुत कम सोचते हैं। ठीक ही बात है, इसलिए थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी महाराज। सेकंड महाराज, जो अगर फॉलो क्वेश्चन, हाँ महाराज ना, देखो ऐसा है कि तुमने पूछा रेगुलर रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पल्सेस के बाद जो बात होती क्या है, यस महाराज, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन में टाइम लगता है, रूटीन फॉलो करते रहना चाहिए। राइट राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण महाराज जी। वो जो फॉलो क्वेश्चन को मैं पुट कर लूं? हाँ करो। बोलो, वो उसमें आपने कहा था कि ये डेथ के बारे में, फियर फ्रॉम डेथ, वी रिमेम्बर डेथ। हाँ यस, फियर क्यों होता है? क्योंकि वी हैव नॉट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग इन लाइफ। तो फियर का एक कारण यही भी है कि वी हैव नॉट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग इन लाइफ। हमारी स्पिरिचुअलिटी में इतनी प्रोग्रेस है। ऐसा है, तुम विवेक वैराग्य की बात करते हो ना, ये मृत्यु का डर जो है तो वो तो सबको रहता है ना भाई। तुम्हारा प्रश्न ये है कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ अचीव किया है, जैसे हमको आपने हमारे बारे में कहा, यस तो लेकिन हमको भी क्या, ऐसा नहीं कि ऐसा थोड़ी होता है कि सब साधुओं को मृत्यु का भय नहीं होता। ये सब कुछ है भाई, तुमने आपने त्याग दिया, बड़ा किया है, आपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्राप्त किया है, तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। ये कोई वो नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं। संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति सबके जीवन में मृत्यु का भय रहता है, सब में होता है। और फैमिली लाइफ वाला है उसको भी मृत्यु का भय रहता है, और जो जब वो है विवेक वैराग्य वाले हैं उनको भी मृत्यु का भय होता है। पर ये कहना है कि जब मृत्यु का चिंतन करते हैं तो विवेक वैराग्य बढ़ता है ना, ये बोल रहे हो ना? ऐसा है कि अधिकांश लोगों को मृत्यु का भय रहता है, वो कोई विवेक वैराग्य नहीं होता। तो तुम्हारा वो प्रश्न जो था ना, वो कोई क्लियर नहीं था। और कोई प्रश्न है? जी महाराज। मैं आज आपका लेक्चर सुन रहा था, वो डिस्कोर्स सुन रहा था, उसमें पतंजलि योग शास्त्र पे, उसमें व्याकुलता की बात की थी आपने। व्याकुलता जो हमारे मन में, तो व्याकुलता भगवान के प्रति नहीं, संसार के प्रति हमारी व्याकुलता तो है, लेकिन भगवान के प्रति नहीं, संसार के प्रति ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है, व्याकुलता इसलिए भी होती है कि ये हमारे संसार कष्ट रूप में है। पहले भी कष्ट थे, आगे भी कष्ट तो बढ़ेंगे ही, कम तो आने वाले हैं। इससे मुक्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो ये व्याकुलता भी, इसको भी हम पॉजिटिव व्याकुलता कहेंगे कि नेगेटिव व्याकुलता? हाँ, ये भी व्याकुलता है, भगवान की तरफ जोड़ना पड़ेगा उसको। यानी व्याकुलता, ये जो मैंने 8-10 उपाय वो बताए थे ना, दृष्टांत दिए थे कल के लेक्चर में ना, जी
हाँ जी महाराज। तो इसके अलावा कई प्रकार से व्याकुलता हो सकती है, संसार के दुख कष्ट से व्याकुलता हो सकती है, सबको होती है, लेकिन उसको हम भगवान की तरफ नहीं जोड़ते हैं, उसको आध्यात्मिक उपयोग नहीं करते हैं। जो लोग विवेकी हैं उनके लिए तो सर्वम दुखम विवेकिनः, ये कहीं पे पतंजल योग सूत्र में है या कहीं पे है, सर्वम दुखम विवेकिनः। बढ़िया खाना पीना है, एसी कमरे में है, लेकिन फिर भी उसको विवेकी व्यक्ति जो है, विचारवान व्यक्ति है, उसको वो दुखी लगता है। वो आगे बढ़ता है कि जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, मैं अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक उसको सभी दुखपूर्ण रखता है। जी जी महाराज। ठीक है जी महाराज जी। तुम्हारा क्वेश्चन ठीक हो गया, फॉलो हुआ और हो गया? हाँ बिल्कुल। प्रणाम। अच्छा, ये तो जी प्रणाम महाराज। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्रेयर ईगो कैन बी ब्रॉट टू हार्मोनी विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, बट हाउ डू जपा एंड मेडिटेशन हेल्प इन द प्रोसेस? अरे जप और मेडिटेशन आर द मीन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जप? व्हाट मेरा ये कहना है, पहले बता लो जप का क्या अर्थ है। जप का मतलब समझते हैं राम 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 करना, ये जप हो गया ना, रिपीटिंग द नेम। यस, इसलिए कहते हैं जब राम 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 करने से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ हमारा कैसे रिलेशन होगा। इसको जप नहीं बोलते। जी, जप का अर्थ है तद जप तद अर्थ भावनम। प्रेमानंद जी जप करते थे तो समाधि में लीन हो जाते थे। भगवान का नाम से इतना प्रेम है, भगवान का नाम लेते ही मुंह में आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का नाम और भगवान एक है, नाम नामी अभेद। तद जपः तद अर्थ भावनम, उसका अर्थ का चिंतन करना। ये अर्थ का चिंतन तो ध्यान हो गया जी। यानी हम यतीश्वरानंद जी बार बार बोलते हैं कि थ्रू जप एंड मेडिटेशन यू गेट इनटू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वो सारे आर्टिकल में ये चीज बार बार उन्होंने कही है, लेकिन हमको लगता है जब से कैसे होगा। हम रोज तो करते हैं, जब से हमको कुछ नहीं होता। बैठते हैं बिट 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 करते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, 5 मिनट भी मन एकाग्र नहीं होता, तो कैसे होगा। इसलिए बोलते हैं अरे जब से क्या होने वाला है। अरे प्रेमानंद जी जब करते थे, हाथ में जप लिया, मच्छर बैठे, मच्छर हैं, ऐसी परिस्थिति में है, बड़ी गर्मी है, ऐसे में जप करने बैठे, सब भूल गए। सारा मन, पूरा मन जो है वो मंत्र के अंदर और मंत्र का अर्थ है उसमें एकाग्र हो गया। तो बाबा ये बात जो कही है वो जब से ही से होती है, जब से होती है। और जब जो है जप लीड्स टू मेडिटेशन, यतीश्वरानंद जी खुद कहते हैं जी। जप यानी क्या है, डॉट 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 लगाना, और मेडिटेशन यानी डॉट को ज्वाइन कर देना, तो ये लाइन हो गई जी। So why would there be any difficulty in this question? Second I'm very sorry. अरे तो हाँ। समझ में नहीं आया तुमको कि जब क्या करना है, मतलब ये है जाना तैयार हो जाओ। ठीक से जब करेंगे नहीं और उसके बाद देंगे जब से कैसे होगा, ये कैसे? Second question है, as human being our love is limited, how do we know that there is a little of divine love in it which one can share? What do you mean? If you have got little love, how can you share it? ज्यादा प्रेम होगा तभी तो शेयर करोगे। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, क्या बोल रहे हो। या तो भगवान से इतना प्रेम करो, भगवान से पूरा प्रेम में विभोर हो जाओ, तब तो दूसरों को प्रेम दे सकोगे। हमारा our love is mostly selfishness, nothing else. जी ठीक है। अपने our love is restricted to our family. थोड़ा से लोगों से बात कर लिया, थोड़ा सा उनको खिला दिया। ये लव को समझना इतना आसान नहीं है बाबा।
जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक हम समझेंगे ही नहीं कि प्रेम क्या है। तो प्रेम और आसक्ति एक ही चीज हो जाती है, प्रेम वासना एक ही चीज हो जाती है। प्रेम जो है वो बंधन का कारण हो जाता है, होता है कि नहीं? जी। संसार में पड़े रहते हैं, प्रेम प्रेम करते रहते हैं, वासना है और आसक्ति है और कुछ नहीं। तो ये जो क्वेश्चन लव के बारे में क्या प्रश्न करना बाबा, पहले खुद में तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या डिवाइन की बात है ना? नहीं, और थर्ड क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर मिल गया, वो सरेंडर के लिए। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सरेंडर पे है। सरेंडर तो वो मिल गया, हमें आंसर मिल गया उसका। हाँ, ओके जी। दिलीप भाई। जी महाराज। आपके ये फिजिकल प्यूरिफिकेशन वगैरह क्वेश्चन है ना? हाँ जी महाराज। पहला सवाल है, हाउ फिजिकल प्यूरिफिकेशन कैन बी डन? आप बताइए। स्नान से नहीं होता फिजिकल प्यूरिफिकेशन? नहीं होता स्नान से। फिजिकल प्यूरिफिकेशन हो स्नान करने से शरीर साफ नहीं होता। महाराज ये तो ऊपर का साफ होगा, अंदर से थोड़ी। अंदर का जो शरीर जो है वो सात्विक आहार से होता है। जो खाएंगे, हम खाना खाएंगे ना, हाँ, तो सात्विक आहार जो होना चाहिए वह सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि होनी चाहिए। और आहार 3 प्रकार से गंदा होता है। एक तो जाति आहार, मांस, तो उसको खाओगे तो शरीर आपका अपवित्र हो जाएगा, जाति। उसके बाद में है आश्रय। आश्रय यानी वो कहाँ से आया, कौन सी दुकान से लाए, मुसलमान की दुकान से लाए, गंदी दुकान से लाए, सॉरी नहीं, ये हुआ निमित्त दोष। किस आदमी के हाथ से आया। ठाकुर तो किसी ने हाथ में किताब पकड़ भी लिया तो वो नहीं खाते थे, देखते थे कि अगर वो खराब आदमी है तो उसका छुआ हुआ नहीं ले सकते। और तीसरा है आश्रय दोष। आश्रय यानी वो उसके ऊपर एक बाल पड़ा हुआ है, धूला पड़ा हुआ है, गंदी चीज उसके ऊपर गिर गई तो वो अपवित्र। ये 3 दोषों से रहित जो खाना होता है उसको खाने से शरीर हमारा पवित्र। ओके। पर ये आज की तारीख में ये कैसे संभव हो सकता है? ये सब हम जान ही नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट कि यदि घर के अंदर बनाए हुई रोटी खाई जाए। बिल्कुल ठीक बात। घर में बनाओ खाना और ठाकुर के सामने रख के थोड़ा सा प्रभु को अर्पण कर दो और खाओ। जहां तक हो सके बाहर का खाना नहीं लो। कुछ लोग तो है तो जाते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं तो थर्मोस में अपना घर का खाना ले जाते हैं, वहां का खाना नहीं खाते और खाने के पहले मन ही मन भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो ये अर्पण करना जो है मानसिक हो गया। इसको हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन अब वो तो ये है कि आज के दिन में भी लोग फॉलो करते हैं, थर्मोस में खाना ले जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, खाते हैं। जी महाराज। Now second question is, how can we create cosmic state of vibration? अब वो वाइब्रेशन का मतलब बताइए तो। आप बताइए वाइब्रेशन का क्या मतलब, आपने क्या समझा? महाराज ये तो ये समझा कि दिमाग के अंदर पूरे समय ईश्वर के ध्यान लगा रहना चाहिए और उसके बारे में सोचते रहना चाहिए, ये वाइब्रेट होता है। वो तो ठीक है जी। लेकिन आपको दूसरा दृष्टांत देता हूँ। हाँ। काशी के वाइब्रेशन और रायपुर इंदौर के वाइब्रेशन में फर्क है तो जी। काशी के वाइब्रेशन और इंदौर के वाइब्रेशन में फर्क है क्या?
हाँ। तो यहाँ पे तो सब जो अधिकांश लोग आते हैं वो भगवान का भजन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्षों से कॉस्मिक वाइब्रेशन बन गए। ऐसे स्थान पे आप जाएगा, ध्यान जब आपका आसान हो जाए। तो जब मेडिटेशन से वाइब्रेशंस बदलते हैं, स्वाध्याय से वाइब्रेशन बदलते हैं। ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपका एक क्वेश्चन आंसर हुआ, उसका असर कम से कम 1 दिन तो बना रहेगा। ये वाइब्रेशंस बनते हैं। तो इस प्रकार से आश्रम में जाने पे वाइब्रेशन उसके फर्क पड़ते हैं। हाँ। तो आपका प्रश्न अब देखिए, ऐसे स्थान में रहिए जहां शुभ वाइब्रेशंस होवे। ये वाइब्रेशन आपको कॉस्मिक वाइब्रेशन में ले जाएंगे। केवल कॉस्मिक वाइब्रेशन बोलने से नहीं होगा, बहुत तपस्या ध्यान जप के बाद में आप कॉस्मिक अपने सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान कर सकते, उसका भाव सदा बना रहे। So that can be anywhere, यदि हम ईश्वर के भाव में रहे तो। हाँ, और क्या है कि दूसरा ये है कि अवॉइड नॉन कॉस्मिक वाइब्रेशन। ओके जी जी। वो 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कहाँ से कॉस्मिक वाइब्रेशन बनेगा? नहीं। वो सारा दिन जो है वो नीचे का वाइब्रेशन बना रहेगा जी। तो ये लोग, हम लोग समझते नहीं, बात तो करते हैं, लेकिन हम अधिकांश हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इसका विरोधी होता जी। तो जैसे मैंने कहा ना कि कमरे को फोटो से सजा लो, बैठो तो कितने सारी डिस्कशन हो गए, बहुत सारे प्रैक्टिकल मीन्स के डिस्कशन हो चुके। जी जी। ठीक है जी महाराज। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज टू टेक केयर ऑफ, थर्ड क्वेश्चन इज कोई काम का नहीं है, फोर्थ पे चलते महाराज। हाउ टू एक्सपांड द कॉन्शियसनेस एज एंड व्हेन द इंपल्सेस राइज इन अस। वो तो हो गया जी हो गया। जब मेडिटेशन के द्वारा एक्सपांड करने की बात हो गई। नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ईगो एंड हाउ कैन इट डायरेक्ट एंड गाइड द माइंड, द सेंस एंड द बॉडी। तो बात ये भी बात हो चुकी है ईगो की बात में। जो ईगो मैं भगवान का भक्त हूँ, राइट ईगो, राइट ईगो ये ना पका हुआ, यानी मैं भगवान का भक्त हूँ जी। इसमें अगर प्रतिष्ठित हो जावे तो ये राइप हो गया, ये पक गया है। अनराइप ईगो है, यानी मैं अहंकारी हूँ, मैं गुणी मानी धनी विद्वान व्यक्ति हूँ, ये हुआ कच्चा अहंकार। और जब मैं कहूं कि मैं भगवान का भक्त हूं तब पक्का अहंकार हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर आप जब ध्यान वगैरह करते रहेंगे तो मन राइट ईगो होके और उसी में लगा रहेगा। नेक्स्ट, टेक ऑल द नेसेसरी फूड फॉर माइंड एंड बॉडी। व्हाट फूड इज फॉर द बॉडी? यानी सात्विक खाना। Take sattvic khana, that all the necessary food for mind and body. What food is for body? तो ये जो अभी तो बता दिया, खाना ये बॉडी का फूड है। आपने बता दिया अभी कंटिन्यूएशन में, और हमने बता दिया 3 प्रकार के फूड बता दिए। Here in the article, what is the meaning of definite? महाराज जी एक ये आया है, वो सेंटेंस पढ़िए तब पता चलेगा। हाँ मैं वो पढ़ता हूँ सेंटेंस। This is there should never be any haziness in the Vedantic aspirant. We must have definite and right thoughts, definite and right emotions and feelings, definite and right actions. Then along ठीक है ये डेफिनेट जब वक्त जो है, हाँ ये मेरा लक्ष्य क्या है आपसे पूछा जाए, दिलीप भाई आपका लक्ष्य क्या है बताइए तो। बोलिए आपका लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। आपने बोल तो दिया है, इट इज डेफिनेट और नॉट? इट्स डेफिनेट, इट शुड बी। हाँ, अगर आपका लक्ष्य डेफिनेट होता है यानी उसके बाद में फिर इधर उधर नहीं करना जी, इसको बोलते हैं डेफिनेट। अच्छा, उसको प्राप्ति करने का उपाय क्या है? वो डेफिनेट है। डेफिनेट का अर्थ निश्चित। उसके प्राप्ति करने का उपाय ये डेफिनेट नहीं है।
महाराज है ना, ये अभी डेफिनेट नहीं है। नहीं, यहाँ बताए ना, राइट थॉट्स, राइट इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट एक्शंस, ये इसके उपाय है। वो ठीक, यानी आप नहीं ये, हाँ, तो आपके जीवन में ये होना चाहिए, ये बात है जी। यानी मैं लक्ष्य मेरा डेफिनेट कर लिया, हाँ, उसको प्राप्ति कर लिया, राइट इमोशंस होने चाहिए जी, मेरे, क्लियर थिंकिंग होना चाहिए, और मेयर हमारे शरीर के एक्शन भी क्लियर होने चाहिए। आज हमारा सब कुछ जो है वो मिला हुआ है, थोड़ा हम संसार की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा भगवान की तरफ जा रहे हैं। भगवान का लक्ष्य भी जो है सच पूछा जाए इतना डेफिनेट नहीं है, ये बिल्कुल डेफिनेट करके इनको पकड़े रहना है, राइट थिंकिंग, उसको पकड़े रहना, वो डेफिनेट हो जाए। हम आज ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे, सुबह काम करेंगे, शाम को नहीं करेंगे। अब 1 घंटा टीवी देखेंगे, पेपर देखेंगे, वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि हम ईश्वर दर्शन चाहते हैं, ये राइट चीज नहीं हुई और डेफिनेट भी नहीं। जब डेफिनेट हो जाती है तब बहुत कठिन हो जाता है। थिंकिंग राइट होती है तो हम उसके बाद में फिर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल बदमाशी की चीजें हैं, नहीं, लेकिन फिर भी करते हम। राइट नहीं, राइट थिंकिंग नहीं है, राइट एक्शन नहीं है, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट। ठीक है जी, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर महाराज जी। नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज, please give us some more effective, yes, my question is, Maharaj ji, please give us some more effective pills as given by Swami Yatishwaranand ji to a devotee in Holland, because some of the devotees is feeling with the same problem. Am I to begin the day as before? अभी आपको भी ऐसा लगता है कि आई एम बिगिनिंग द डे एज बिफोर? कुछ फर्क नहीं पड़ा? बहुत स्लो फर्क पड़ रहा, बहुत धीरे चल रही है, भगवान जाने कितने जन्म तक ले जाएगी। तो आप कोई इंस्ट्रक्शन चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बना के उसको पकड़े रहिए। फिजिकल रूटीन, इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे, इतने बजे से ये इतने बजे तक करेंगे, और बराबर स्वाध्याय का स्ट्रिक्ट टाइम कीजिए। इस प्रकार से देखिए हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे कमजोरियां हैं, उसको दूर करने के लिए प्लान कीजिए। ये डेफिनेट करके आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद में जब आप सुबह उठेंगे तब कहेंगे मैं आज मैं अच्छा जीवन जिंदगी दिन स्टार्ट कर रहा हूँ। Am I going to start a day like this old days? No, no. I am going to start a better day. और एंड भी जो होगा दिन का, उसमें आप सोचेंगे वाह, I lived a better day than before. अब इसको भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो जीवन में अब खुद पता लगाना पड़ेगा हमारे दोष क्या हैं और उसको दूर करने का प्रयत्न। ठीक है, बराबर जी महाराज जी। तो वो हॉलैंड जैसा हो जाओगे आप भी। हमारा महाराज हो गया। हाँ, महाराज ने स्पीच दे दी। एक और है अभी महाराज जी, वी अंडरस्टैंड दैट नेवर स्पीक और डिस्क्लोज और शेयर द स्पिरिचुअल अनुभूति विथ एनीवन, दैट इज द जनरल थिंग इट इज सेड। Here share this love with our fellow beings without expecting any return. तो ये क्या दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन? या ऐसा है कि जो साधक है तो एक साधक अपना मित्र साधक जो है उसको साथ में डिस्कस करेगा। अच्छा। उसको बताएगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी, वो उससे कुछ पूछेगा कि अरे भाई मेरे को इतने ये भाव हो रहा है, क्या करूं मैं, ये मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उससे बातचीत हो सकती है। तो इंटीमेट लोग हैं उनसे बातचीत हो सकती है, जनरल पब्लिक के बाद में इस प्रकार की बातचीत। इसलिए डोंट डिस्क्लोज टू जनरल पब्लिक, बट यू कैन डिस्क्लोज टू सम साधक, आपका मित्र होवे जो आपको मदद कर सके, उसको आप
यानी हम डिस्कशन के बेसिस पे हम अपने बराबरी वालों से कर सकते हैं या अपने से बड़े गुरु अपने बराबरी यानी आध्यात्मिक बराबरी वाले अपना मित्र जो है उसको, हाँ जो साधक है बराबरी अपना मित्र या आपका गुरु होवे, आपसे कुछ श्रेष्ठ होवे, उनसे तो आप अपनी भावनाएं बता सकते हैं। तो हम गुरु के सामने वी कैन एक्सपोज आवरसेल्फ कि हमने क्या किया या क्या नहीं। हाँ डेफिनेटली जी, गुरु को तो कर ही सकते हैं। राइट, बस प्रणाम। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। अब कौन बचा? विभा, विभा, आभा विभा है कि नहीं? हाँ प्रणाम स्वामी जी, I have got my answer. Oh, you actually got I have, yes Swami ji, I have got my answer. Okay, okay, okay. What was the question? Question was harmony of thinking, feeling and willing. Harmony Okay. for our spiritual. हाँ. अच्छा अच्छा, I have okay. got an answer. हाँ, thank you so much. प्रणाम स्वामी जी. अच्छा, so anyone और कोई बचा? महाराज, may I ask? कौन बोल रहा है? कुंडू महाराज. आप बोलो। हाँ, you have the question था, sorry. You have question is there, yes. Maharaj, regarding these three types of reasoning, you know, we know that logical reasoning leads us to truth. We always use logical reasoning to lead us to truth. Then why it is said that too much of reasoning is not good? And then is it because the veil of ignorance does not allow us to reason out properly? And once the veil is lifted, then we are established in knowledge and reasoning is no longer required. Is this the reason that we are telling that too much of reasoning is not good? अरे तुमने जो फर्स्ट सेंटेंस बोला है ना, फिर से बोलो। Logical reasoning can lead us to truth. Yeah, that itself is wrong. Okay, Maharaj. Fundamentally it is wrong. शास्त्र में बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र में है, तर्क प्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती. There is nothing like logical reason. You have taken something as true and you start reasoning. Somewhere you have to accept something as truth and then you start. But that itself might be wrong. Okay. That is why reason is not considered a means. You know, शास्त्र, श्रुति, युक्ति, अनुभूति, ये तीन होने चाहिए to come to a truth. और जो आप शास्त्र कहेंगे, वह जो रीजन कहेंगे, वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए. Logical reasoning itself is not sufficient. There must be some basis for it. Then only you can be reason. Okay. So don't. Now you see, you read it again. The question will not arise. The whole question goes away. Okay, Maharaj. Your statement itself goes away. Okay, Maharaj. महाराज, you know, I was telling that ये तीनों जो इसकी तीनों की कॉन्टेक्स्ट मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था कि लॉजिकल रीजनिंग, then he talks of wine of ignorance and then he talks of fear in the same context. तो ये मतलब इंटर रिलेशनशिप मुझे ठीक समझ में नहीं. वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो फियर का पॉइंट है वो डिफरेंट है. अच्छा, वो तो एक कहानी सुनाई है उन्होंने कि बहुत सारे आदमी मर रहे हैं, कुछ फियर से मर रहे हैं. ओके महाराज. वो बताया था ना, कुछ लोग फियर से मर रहे हैं, कुछ अपने आप मृत्यु मान रही है डर से. तो और उसके पहले कहा है इग्नोरेंस. तो क्या है कि हमारा माइंड या तो फियर या इग्नोरेंस या और कुछ बाकी प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम्स के कारण हम लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं कर पाते. अच्छा. आइडिया. Because of our preconceived notions, because of fear, because of our ignorance, we are not able to do even the logical reason. Yes, Maharaj. Okay, Maharaj.
ओके, पर तुमने वही पैराग्राफ पढ़ा और कोई पूरा किताब पूरा आर्टिकल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा महाराज, पढ़ा अच्छा, और कोई बचा भाई? कोई बचा? भामरी जी तो कुछ पूछते ही नहीं है। महाराज जी, हाँ, मैं एक सवाल पूछूं? कौन बोल रहा है? श्रीमयी। हाँ बोलो बोलो। अरे अरे, तुम तो पूछो ना, तुम्हारा तो पीएचडी चल रहा है, तुम्हें कुछ बोला नहीं। हाँ अभी बहुत काम का टाइम है तो हाँ काफी प्रेशर है। पूछो पूछो। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि जो लोग समवॉट इन बिटवीन है, मतलब संन्यास भी नहीं लिया बट वर्ल्ड में रहना भी बहुत कुछ खास पसंद नहीं है, वो लोग क्या करें? मतलब मुझे उतना अरे आज के जमाने में तो पहले जमाने की सिचुएशन थी कि 15-20 बरस की लड़की हुई कि शादी कर देना चाहिए, और नहीं होता था तो लोग बोलते थे ये क्या हुआ। आजकल तो कितनी लेडीज हैं और 20, 25, 30, 35, 40 सारा जीवन आराम से निकाल देती हैं बिना मैरिज के। ऐसे तो बहुत सारे हो गए हैं भाई। हाँ बहुत है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, अपनी माँ के साथ में रहे, सारा जीवन निकाल दिया मजे से। Yes, Maharaj ji. So it is in modern times, it has not become very difficult. Yes, it is easily, it can be done, and so many people are living. So many girls are living. Girls क्या होते हैं, उनको आप लेडीज ही बोलना चाहिए, गर्ल नहीं रहे। Yes, और फिर वो आसपास कहीं शारदा मठ हुए तो उससे उसके साथ कांटेक्ट कर लिया, उसमें रहने लगा। अब वो एक मैं यहाँ जानता हूँ, एक क्या है, क्या नाम उसका, मालिनी गुप्ता है, तो वो तो 50-60 बरस की हो गई, कुछ न कुछ करती रहती है, योगा क्लासेस करती रहती है, इंस्ट्रक्टर हो गई है, वो सब करती रहती है, हमारे आर्टिकल्स वगैरह को कुछ करती रहती है। तो वो so many of them are. Yes, Maharaj ji. So if you are not interested in marriage, very good. संसार में एक बार फंस गए, then mind does not go up. You have to live at a very low level. It's not that I'm not interested. मुझे कोई घर पे है अच्छा लगता है, बट मुझे ये सब पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, संसार में तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो मैं आपको ये get definite, or you read Holy Mother's life, or read Sri Ram Krishna Swami Vivekananda's literature, or read other good literature, and keep your mind at a higher level and become more definite about your goal of life and the way of your life. Yes, Maharaj ji. You don't be at this age now, you don't be indefinite. भाई ऐसा spiritual ideal बना लो, अगर थे make a spiritual ideal. I must achieve something in spirituality. I must be able to do good meditation. Yes, I must be able to शिव ज्ञान से जीव सेवा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये जो आइडियल्स हैं, लोगों की सेवा भी करूंगी और अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करूंगी। So those things can be done, no difficulty. मैं देखूंगा, मेरे पास कुछ आर्टिकल्स मेरे हैं, there are 2 books on online, सॉफ्ट कॉपीज हैं, मैंने कुछ भेजी हैं क्या तुमको? किस टॉपिक पे? मेरी कुछ किताबें भेजी हैं क्या, सॉफ्ट कॉपीज? नहीं महाराज जी। आर्टिकल्स नहीं भेजे क्या? नहीं, मतलब आपने सफरिंग पे 2 आर्टिकल्स भेजे हैं और बीच बीच में भी एक आध आर्टिकल, बट बुक्स नहीं भेजे हैं। नहीं, वही तो उसी के आर्टिकल हैं, उसी के बुक किताबों के ही आर्टिकल्स हैं। एनीवे, हाँ तो मतलब हाँ, अब तुम्हारे तुम जो डेफिनेट कुछ जो आइडिया है तुम्हारा, उसको डेफिनेट करके मेरे को ईमेल से भेजो। अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू। ओके? यस महाराज जी। ओके। महाराज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता था। कौन बोल रहा है? आशीष अग्रवाल। हाँ बोलो।
जो अभी श्रीमाई ने जो सवाल पूछा उसी को मैं आगे पूछना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो है, शरद चंद्र चैटर्जी यही सवाल स्वामी विवेकानंद को पूछते हैं कि मैं यानी गृहस्थाश्रम में नहीं बनना चाहता हूँ। तो स्वामी जी बोलते हैं कि एक तो विवाह करके संसार में बस जाओ या फिर संन्यास ले लो, बीच का रास्ता ठीक नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हालांकि मैंने तो मैरिज कर ली है, मैं तो गृहस्थाश्रमी हूँ, लेकिन मैं इस पे चाहता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज में रहते हैं, शादी नहीं करते और संन्यास भी नहीं लेते। तो स्वामी विवेकानंद कमेंट करते हैं इसके ऊपर शरद चंद्र चैटर्जी को। ऐसा है कि ये जो उन्होंने पर्टिकुलरली शरद चंद्र चैटर्जी के बारे में कहा, अच्छा, यानी दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता, अनमैरिड होता, तो वो शायद उसको कहते कि तुम सन्यासी हो जाओ। अच्छा, तो इट इज नॉट डेफिनेट कि वो उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया है या शरद चंद्र चक्रवर्ती को ही दिया है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे है हमारा वाराणसी सेवाश्रम, तो वहां पे कई प्रकार के हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं। एक तो है जो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, दूसरे हैं जो बाहर के सन्यासी हैं, रामकृष्ण मिशन के मेंबर्स नहीं है लेकिन सन्यासी हैं, वो लोग वैसा ही काम कर रहे हैं। तीसरे हैं जो नॉन मोनेस्टिक हैं, वो वॉलंटियर्स हैं। तो इसमें कुछ हैं जो अनमैरिड हैं और कुछ लोग मैरिड हैं और यहाँ आके रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ पीपल, टाइप्स ऑफ पीपल। तो आज के जमाने में तो क्या है कि those rules regulations have not remained। और अगर आप प्योर रह सकते हो, अनमैरिड रह सकते हो और कोई एक्टिव काम कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, तो बड़ा अच्छा है। और अगर ठीक ठीक सेवा करते हैं तो उसके बाद में भगवान देखते हैं, उनको उनकी सेवा करने का कोई न कोई व्यवस्था भी कर देते हैं बुढ़ापे। So yeah, these are very number of issues that are involved in it, but remaining unmarried and doing service is a very good option, which must be considered. ठीक है महाराज जी। महाराज जी, माय केस जो है ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं हो तो भी ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करनी है, बट मुझे जितना पॉसिबल है शांति चाहिए। मतलब घर में शांति चाहिए। क्या ये पॉसिबल है मैरिज में? भाई मैंने तो शादी नहीं की है, मैं क्या बताऊंगा। और कई लोग जो है वो शादी करके बहुत सुखी होते हैं। हम सब बता सकते हैं महाराज, होते हैं शादी में। महाराज मेजॉरिटी यहाँ पे जितने भी मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग सब शादी वाले हैं, इनसे ही बात करो, तुम मेरे से क्या पूछ रही हो। महाराज विद्या संसार। यस महाराज जी। विद्या संसार, अविद्या संसार और विद्या संसार। विद्या विद्या संसार। हाँ, ठाकुर। যদি বিদ্যার संसार করতে পারো তাহলে ঠিক আছে। हाँ, विद्या का संसार होवे तो ठीक है, नहीं तो फिर it is very difficult, very difficult, very difficult। ऐसे मैंने कहा है कि तुम यहाँ पे जितने लोग हैं ना, उन लोगों को सब बोलो, वो लोग ही तुमको, जो लोग गृहस्थ है ना, वो लोग ही बता देंगे बड़ा कठिन है। यस महाराज जी, मुझे और एक सवाल पूछना था। क्योंकि ईगो पे इतने सारे सवाल आए हैं, मेरा एक सवाल बहुत दिन से था, बट वो टिपिकल ईगो से नहीं है, मतलब एरोगेंस टाइप ऑफ ईगो से नहीं है। आई कॉल इट एक्चुअली द रिवर्स ईगो। मतलब जो मैंने रियलाइज किया है, जो एटलीस्ट मुझ में है, वो उतना एरोगेंस या प्राइड या बहुत ये सारी चीजें कम है, बट रिवर्स काइंड ऑफ ईगो मुझसे ज्यादा, मुझ में ज्यादा है। मतलब वहां पे आई आइडेंटिफिकेशन बहुत, वहां पे भी आई आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और वो है कि मतलब मुझसे ऐसा काम कैसे हुआ,
मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? मैं ऐसा सोच नहीं सकती। वहां पे भी मतलब बहुत आई आइडेंटिफिकेशन है, तो आई कॉल इट द रिवर्स ईगो। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा था। हमने अभी जो कहा है ना कि आत्मविश्वास की बात हुई ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। और ये कि दिस डज नॉट बिफिट मी, स्वामी विवेकानंद कहते थे, दिस डज नॉट बिफिट मी, ये मेरे से ये काम नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो वो तो अच्छा ही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ईगो को जब वो बदजात ईगो, बदमाश ईगो हो तो बुरा है, लेकिन ये तो अच्छा है। नहीं महाराज, मतलब मेरे केस में एटलीस्ट अभी मैं मच बेटर हूँ इस बारे में, बट एक और एक्सट्रीम में चली गई थी एक टाइम में, ज्यादा अपने आप को कोसना। तो ना ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और वहां पे भी वो आई फैक्टर बहुत स्ट्रांग है इन द ऑपोजिट सेंस। तो ये भी एक ईगो है ना महाराज जी? तो है, तो ईगो तो है ही। राइट। तो इसको कैसे ओवरकम करें? अरे पूरी रामायण हो गई, उसके बाद में बोले पूरी रामायण हो गया, बोले कि सीता कौन थी? अरे आज का सारा सेशन तो ईगो पे ही था। अब उसके बाद में तुम पूछ रही हो कि ईगो कैसे दूर करें? नहीं, ये रिवर्स ईगो। अच्छा, और तुमको इसको फ्रेम करके ये रिवर्स ईगो पे कुछ पॉइंट्स है कि नहीं आपको पूछना था? तो उसके बाद में आज तो टाइम हो रहा, मेरा 2 घंटा हो रहा है। बहुत हो गया टाइम, 2 घंटे हो गए। तो अपन इसको क्वेश्चन करके भेज देना, तुम्हारे व्यूज भी भेज देना about yourself, and then we will discuss it in maybe in the next session. Okay? Okay, Maharaj. Thank you. महाराज जी प्रणाम। महाराज जी देवाशीष शाह। कौन? देवाशीष शाह है। देवाशीष शाह महाराज जी प्रणाम। देवाशीष बोलो। ए निवेदिता, आज सुबह क्वेश्चन मिले, रात को 12 बजे 1 बजे क्वेश्चन भेजे थे, आज सुबह मिले। अभी टाइम नहीं महाराज, नेक्स्ट टाइम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम महाराज। सुनो देवाशीष शाह। यस सर, यस महाराज जी। प्रणाम स्वामी। नहीं अभी ठहरो, वो देवाशीष शाह कुछ बोलना चाहता है। महाराज जी देवाशीष शाह। Yes, Maharaj ji, pranam Maharaj ji. What I wanted to, I just want proposal कि अगर summary of the spiritual talk, if it is been read by you, that will give us more impact on us. I mean, that will be very useful to us if it is possible. If everyone is, then only I think it is. I mean, that's what you said that. क्या बोला आपने कि जो spiritual talk, summary of the spiritual talk जो है, अगर अगर आप अगर पढ़े 5-10 मिनट के लिए समरी कर दें तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। देखो मुझे सोचना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा लोड तो ज्यादा हो जाएगा ना मेरे ऊपर। ओहो ठीक है महाराज जी, ठीक है। मैं तो ये तेरा आइडिया ये है कि जो लोग जो समरी करता है तो उसको पढ़ने का एडवांटेज मिलता है, उसको ज्यादा डीपली उसको स्टडी कर सकता है। दैट इज द आइडिया। ओके महाराज जी। That was the idea. Okay. That was the idea. Okay महाराज जी, okay. ठीक है। Okay, thank you महाराज जी। अच्छा। प्रणाम महाराज। शांति महाराज। ओके प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज।